लाइव यू टू मुंबई। हाँ मिल रहा आउटपुट ना सर। कैमरामैन इरफान। हाँ हाँ ठीक है सर। अरे यार, अरे हट जाओ साइड से, बीच में से हट जाओ दादा। अरे यार काम का नहीं करते, रोज नहीं मिलेगा ये। ये विनय सबको बोल थोड़ा साइड में। हाँ लाइव फ्रेम है। ओके ओके। जामत लाइव चल रहा है। करजत अरे हट जा यार सामने से। क्या खड़े हो? राजदीप जी, can we get some बॉस वहाँ से उड़ जाओ प्लीज। May I request Sumit to please first say a few words about being here, about the album, what the album means to him. I was told that the album came across, it started off over a cup of tea, one fine evening. ओ चाचा, A big hand for Rashida Khan. Thank you, Rashida. Firstly, ladies and gentlemen, thank you for coming today. I'm so touched by all of you being here, by your presence. It truly means so much to all of us. So thank you for coming today. जब इतने ज्यादा इलस्ट्रियस लुमिनरीज हो तो फिर इतनी तेज रोशनी की जरूरत पड़ती नहीं। रोशनी जो है सारी स्टेज पे है। This journey has been amazing. Absolutely incredible. And the man I'm sitting next to is a genius. Sumit, you have to tell us something new. Let me tell you. He just celebrated his 90th birthday on the 18th of August. But let me tell you something. You know, his energy is of a 60-year-old man. His spirit is like a 35-year-old. And his romantic expression is of a 21-year-old. I think he deserves a massive round of applause. I'm a dreamer, and since my childhood, I've always said to myself, you must reach out to the stars, and if you do that, then the stars will reach out back to you. I've dreamed big. I have many dreams, many fulfilled, many yet to be fulfilled. But I want to tell you something. This moment here, I never even dreamed or imagined in my wildest of dreams, imaginations. You can't dream of such a thing. And you know, it's surreal that I'm sitting next to Gulzar Saab. It's surreal. Lucky is holding my hand, otherwise I think, you know, I'm in a dream, I'm sleeping. When I first got this opportunity, I had to pinch myself. And this goes back to the
30th of September last year. Actually, last month. 30th September last year, we met Bhavdeep ji and myself at Gulzar Saab's house. And we met this amazing person with no expectation. We went simply to meet him, where Bhavdeep ji rekindled his relationship with Gulzar Saab. I sang, we had lemon tea together. And and then it was Gulzar Saab's idea to do an album. And I was so taken aback. Because it was like, am I actually hearing this? It real that, he wants to do this album. It's so incredible. सुमित, आपको ऐसा नहीं लगता है अभी गुलजार साहब के घर पे बहुत सारे लेमन टी के सैशेस भेजे जाएंगे ऑल एस्पायरिंग से? चलिए लेमन टी पीते हैं. And this journey began where, spending time with him, and this is done like the old times. A lot of musicians here, you all will agree with this, that the times of yore, which I only read and heard about, that you all sit together and you make music together. These days everything is computerized. आजकल तो compositions phone में ही बता देते हैं, lyrics phone में बोल देते हैं, WhatsApp कर देते हैं. But this 11-month journey that we've had, and Bhavdeep will also speak about this as well. We sat with him, in this most beautiful times together, where we got to know about, the man behind the words, his philosophy, his brilliance, and it was so incredible, to do this whole album. And this 11-month journey has been a masterclass for me, a masterclass in poetry and literature. It's been so incredible. And above all, above the poetic brilliance, I must share this. Gulzar Saab didn't treat me like a singer, but he gave me the love that a grandfather would give his grandson. It was, and I learned so much from him, and I thank you from the bottom of my heart. And I thank each and every one of you. I must say something about Bhavdeep ji. These most beautiful, incredible words needed that level of composition in the music. And Bhavdeep ji delivered. The way that he has composed these songs, he deserves a big round of applause for that. He too has brought these words into musical life. And I thank him. I thank all the artists, musicians who are part of this album. Each and every one of you from the bottom of my heart. Sanjay Japurwale, the music producer, thank you Sanjay bhai. All the musicians, Vijay Dayal, Harshal, Anand, who are part of the production team. The video, which we will see a bit later on, Gitesh, Parth, Pratham, the entire creative team, so many people who are part of it, who actually put a hoarding, a poster outside with everyone's names on it, because we're really grateful to everyone. This is very important to each and every one of us. And I want to thank my family, my wife Krupali, my mother and father, Mahendra and Maya, my daughters, Saisha and Meera. They sacrificed a lot for me, so I want to thank them from the bottom of my heart. And such moments are not possible without the blessings of God. It's simply not possible for a singer like me to be sitting here. It's not possible. So thank you Bhagwan, thank you Sadhguru, thank you to all the elders, my Guru, Guru Janataji, to all of you who are here today, and all of you, and so many people who have, who have sent messages, and I'm so grateful to see
such incredible elders will be coming on stage soon. Thank you for coming here today, blessing me. Lots of love to all of you. Thank you. May I now request Bhardeep ji to please say something to add more to how this album actually came into being, other than with the lemon tea. उसके अलावा और सुमित से. नमस्कार. बहुत मेहनत करवाई मैंने इससे. वो थोड़ी आपकी रेपुटेशन भी है. और आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं. सबसे पहले गुलजार साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमारी अर्जी को माना और इतने खूबसूरत गाने उन्होंने हमें दिए. एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जिस तरह पुराने ज़माने में शब्दों के ऊपर गाना कंपोज होता था, ये एल्बम उस तरह से कंपोज हुआ है. आजकल आप लोग ज़्यादातर यहाँ म्यूजिशियंस हैं, मेरे भाई बंधु सब बैठे हुए हैं. सभी लोग पहले तर्ज बनाते हैं और उसके ऊपर लिरिक्स राइटर लिखता है. तो वो जब लिखता है तो वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि खाना पूर्ति होती है, फिल इन द ब्लैंक्स. मगर इस एल्बम में दिल परेशान करता है हमें, ऐसा नहीं हुआ है. और क्योंकि मैं घरानेदार म्यूजिशियन हूँ, मेरे दादा बूढ़ी गंधर्व पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, मेरे पिता पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले, मेरे चाचा पंडित गिरधर प्रसाद जयपुर वाले, सब बड़े कलाकार हुए अपने वक्त के. तो मैंने ये सोचा कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे रागों से दूर नहीं जाना है. तो 7 गज़लें और गीतों का ये जो गुलदस्ता है गुलजार साहब ने लिखा, उससे मैंने 7 अलग रागों में कंपोज किया है. अब लाइट म्यूज़िक है तो प्योर राग नहीं होता, उसमें मिश्र हो जाता है, लेकिन बेस किसी न किसी राग का ज़रूर है, जो आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा. और मैं शुक्रगुजार हूँ सुमित का कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये गाने कंपोज कर सका और मुझे फिर से एक बार गुलजार साहब के साथ काम करने का मौका मिला. मैं आपको एक और बात बताऊं कि गुलजार साहब के साथ काम करते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं. गुलजार साहब और मैं सिल्वर जुबली मना रहे हैं. 25 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और इनका हमेशा बहुत आशीर्वाद रहा है मुझ पर. मेरे जो म्यूजिशियन भाई हैं, मेरा छोटा भाई संजय जयपुर वाले जिसने म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है इस एल्बम में, जोरदार तालियां उसके लिए. और मेरे जितने म्यूजिशियंस भाई जो इस एल्बम में जुड़े हैं, सबका नाम बाहर सुमित ने बहुत प्यार से दिया है. और मेरे इंजीनियर्स आनंद डबरे एलएम स्टूडियो के, जिन्होंने पूरा एल्बम रिकॉर्ड किया. फिर विजय दयाल यशा स्टूडियो के, उन्होंने गाने मिक्स किए हैं. हर्षिल पाठक, उन्होंने भी गाने मिक्स किए हैं. मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दिल परेशान करता है, आपको सुनते वक्त परेशान नहीं करेगा, खुशी देगा. और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे मित्र फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ मौजूद हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी यहाँ हैं, तो आशीर्वाद देने के लिए खास तौर पर आए हैं. फिर अनूप भाई साहब हैं, अनिल शर्मा जी हैं, मेरे भाई ललित पंडित जी हैं, जेडी मजेठिया हैं, रोनू भाई हैं, कृष्णा हेगड़े जी हैं, घनश्याम वासवानी जी हैं, अपने अशोक खोसला जी हैं और निखिल कामत जी हैं, वैशाली सामंत हैं. और मेरे बचपन के मैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त फैन था, अगर मैं कलाकार नहीं बनता तो शायद क्रिकेटर बनता, जो मुझे बनने से मेरे पिताजी ने रोक दिया. तो हमारे लेजेंड सुनील गावस्कर जी यहाँ मौजूद हैं और जिनको हमने साक्षात राम के रूप में देखा है, अरुण गोविल जी यहाँ मौजूद हैं. जोरदार तालियां इन सबके लिए. कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ. दुर्गा शशा जी मेरी बहन यहाँ हैं, दीपक पंडित यहाँ हैं, फिर मेरे चाचा पंडित लघु प्रसाद जी हैं, संदीप महावीर हैं, राजीव महावीर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं. मेरा पूरा परिवार यहाँ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस एल्बम का हिस्सा बना और मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ
अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर कर सकूं। शुक्रिया, थैंक यू। सुनील, लगता है आज इंडस्ट्री में हॉलीडे डिक्लेयर हो गया होगा कि किसान। चलिए, अब उस वक्त का जिस वक्त का इंतजार हम कर रहे थे गुलजार साहब, अब आपसे गुजारिश है कि आप कुछ बताएं कि ये दो लोग जब आपके पास इल्तिजा लेकर आए थे तो उस ग्रीन टी में ऐसा क्या मिलाया था इन्होंने कि आपने हाँ कर दी? ना तो मैं कभी भी नहीं करता। ये कह के आपने खुद को मुश्किल में डाल दिया है। मैं तो आपको भी कभी ना नहीं किया। सर, मैं सिंगर बनने आई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं गाना गाना चाहती हूँ। मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मुझे म्यूजिक समझ नहीं आता। आप प्लीज एक दो गाने मेरे लिए लिख दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भवदीप जी ने फोन किया कि मैं किसको गा सकता हूँ। अगर आपको अभी फुर्सत हो तो अभी आ जाइए, वरना आप बता दीजिए। भवदीप जी के साथ, जैसे उन्होंने बताया, 25 साल से एसोसिएशन है उनके साथ। आबिदा जी ने जब कबीर गाया था तो उस जमाने में वो म्यूजिक भी आप ही का दिया हुआ था। अमजद अली खान साहब के साथ एक वादा नाम से एल्बम की थी, तब भी आप ही थे, उन्होंने सारा म्यूजिक अरेंज किया था। तो उसके अलावा बैठकों में, किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में मुसलसल हमेशा मुलाकात होती थी भवदीप से। और मैं तो बल्कि कहा भी है मैंने कहीं एल्बम ही में शायद या किसी जगह कि भवदीप जयपुर वाले, वो मैं जयपुर वाले भवदीप जयपुर वाले कहते रहता हूँ। और ये भी कहा मैंने कि भाई वो कहीं के भी होते इतने ही सुरीले होते हैं। जरूरी नहीं था कि जयपुर वाले भी होते थे। सुनते, और वो एक एसोसिएशन, मैं क्योंकि खुद बड़ा बेच रहा हूँ, कभी गुनगुनाया, लेकिन जो गाते हैं उस पर रश्क तो जरूर करता हूँ और अच्छा लगता है सुन के। सामने बैठे हैं हरी भाई, अब उनकी जवानी में मैंने अपना बचपन गुजारा है। पंचम के साथ, और पंचम के साथ महफिल में जब भी जमते थे तब से, उस जमाने से। और रोनू है, बताइए, उनको भी याद होगा, पंकज जी हैं बैठे हुए साथ। तो मैं ये कहूँ कि अगर आप किंडरगार्टन हैं सारे, तो मैं फिर अभी बालिग भी नहीं हुआ, मैं तो नाबालिग में दाखिल हुआ हूँ। लेकिन ये स्वर की दुनिया, वो पंडित बैठे हुए खड़े हुए दीपक पंडित हैं, उनसे एक एसोसिएशन तो किसी न किसी वजह से म्यूजिक के साथ लगी रही, पर हारमोनियम पे नहीं बैठ सका, तो वो नहीं कर सका। जरूर कोशिश जरूर करता, तो फिर उस तरफ निकल जाता। समंदर बहुत बड़ा, मैंने तो सबसे आसान रास्ता ढूंढा कि भाई लिख लो और साथ साथ चलते चलो, जरूर धुन बनाते हो साथ चलते चलो, तो लिखने का रास्ता। उन्होंने कहा कि मेरे साथ में किसी को लेकर आ रहा हूँ, तो आप बताइए। मैं सुमिता के साथ में, और इनको देखा पहली बार, और बड़े मध्यम बोलते हैं, बहुत मध्यम आवाज में। आपने अभी भी देखा कितना मध्यम बोलते हैं, और तो मेरा ख्याल है वो सब कुछ कहीं कोमल सुरी में करते हैं। हाँ, तो बस आए, उन्होंने कुछ जिक्र किया, कुछ कंपोजिशन का जिक्र किया, गजल का जिक्र हो गया। भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया। और क्योंकि वरना वो ध्यान जाता कि ये तो देख रहा है। तो गजल का जिक्र शुरू हुआ, गजल की बात हुई, गजल करना चाहते हैं। कौन सा था आपके पिताजी ने जो कहा था कि तुमने तो दिल पे इख्तियार किया,
तो इनके पिताजी ने किया था। तो मैं तो अपनी सादगी से कह रहा था कि तुमने तो दिल पे इख्तियार किया, भाई हमसे होता नहीं, 1000 किया। तुमने आदतन कर दिए वादे और हमने आदतन एतबार किया। तो इस तरह से चलते रहे और तो वहाँ से बात शुरू हुई। तो सुमीत को तुमने, अच्छा मेरे यहाँ हारमोनियम है ही, मैं हेमंत कुमार जी ने, हेमंत दा ने ला के कलकत्ता से दिया था, उसको मेंटेन करता रहा मैं और वो अब भी है। उस पर सलीला ने भी आके पंचम जब दिल पड़ोसी है बना रहे थे हम, तो तब भी वो तंग आ जाता था। आशा जी बार बार याद दिला देती थी, देखो देखो वो एल्बम करनी है, देखो देखो वो एल्बम करनी है। तो तंग आ जाता था, तो म्यूजिक रूम से उठ के कहता था, अच्छा चल वो फालतू काम तेरे घर पे करते हैं। तो वो फालतू काम दिल पड़ोसी है जो आपके साथ वो। तो मैं पूछा ना, मैंने कहा हारमोनियम रखूँ उसे मेंटेन, कहने लगे जरा इसको शोर ठीक कराने। भगदीप जी ने ट्यूनिंग के लिए फिर से भेजी, विशाल आते थे तो विशाल ट्यूनिंग के लिए भेज देते थे। मतलब वो आप यकीन मानिए वो हारमोनियम नहीं, ये मेरी ट्यूनिंग करते रहे सब जितने म्यूजिक ये सारे कंपोजर म्यूजिक ट्यून करते रहे कि अब तो ठीक लफ्ज लिखो, अब तो कोई सही मीटर में लिख लो, अब तो वजन ठीक रखो। इस सूरत में वो एंड सुमीत ने उन्हें कुछ बंदिश कुछ बताया कि वो सुनो, और वो आवाज बड़ी खूबसूरत, बड़ी कोमल सी, बड़े आराम से वो वाकई वो समा गई अंदर। तो कोई वजह नहीं बनती कि उसके बाद में इन दोनों के साथ शामिल ना हो। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे अल्फाज उन्हें पसंद आ गए और फिर सुमीत गाते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते हुए भी अच्छा लगता है। और ये समझिए कि बस वो अल्फाज को पनाह मिल गई आगे इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, बहुत बहुत शुक्रिया। These are sessions that must have been a lot of fun, Sumit. You should have recorded them and we could have played some of the sessions here. That would have been amazing to just see. ये जो दिल परेशान करता है, किसने किसको कितना परेशान किया, या किसकी परेशानी सुलझ गई. Because those would be really insightful to watch. But time now for us to watch the actual album and time to release the album. And for that, I would like to invite onto stage a few guests of honor, please. May I first of all invite Dr. Krupali, जो खुद बहुत कोमल सुर में बोलती हैं. आइए please. सुमित की better half. It's very tough to make up who is the better half out of the two of you because you do, both of you do such immense good work. सुमित के पिताजी महेंद्र टप्पू. Good evening, sir. Welcome. From the team, may I invite Mr. Sanjay Jaipurwale. संजय भाई, गीतेश यादव, पार्थ दुबे, प्रथम चौरसिया, विजय दयाल, हर्षिल पाठक and Anand Dabri. Now I also take this opportunity to invite onto stage our guests of honor. सबसे पहले पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी. The evergreen young man of the Ghazal world, please welcome Padma Shri Anup Jalota ji. Padma Shri Suresh Vadkar ji. Suresh ji is here. Is he here?
He hasn't come yet. Shri Anil Sharma ji. Shri Abhishek Chaube. Shri Ravi Udyavar. Shri Ashok Khosla ji. Shri Chandan Das ji. Shri Ghanshyam Vaswani ji. Shri Shyam Singhania ji. And of course, the man who inspired not just millions but actually a billion, Shri Sunil Gavaskar ji. Shri Lalit Pandit ji, may I request you to please come on stage. और मेरे हम उम्र JD मजेठिया जी. And of course, we need divine intervention. May I please invite onto stage Shri Arun Govil ji. Sorry, my fault. Arun ji. It's time now for the official unveiling of the album. Absolutely momentous occasion. Truly an honor to be on stage with so many luminaries and such distinguished guests. Thank you so very much. It's time for us to officially release the 2 music videos. May I request the music videos to be played, please? May I also request all the guests to please be seated. Yeah, shut up. Shut up. No, everyone loves it when you take center stage. सबसे पहले तो पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौबे जी को प्रणाम। आपका आना ही हम सबके लिए आशीर्वाद। आज संगीत जगत के ये पितामह है, पितामह। हम लोग सब बहुत इज्जत करते हैं इनकी। गुलजार साहब के लिए एक शेर है। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं,
मिलता भी कैसे, कोई था ही नहीं। गुलजार साहब का एक कलाम जो गा देता है उसका सारी दुनिया में नाम हो जाता है। यहाँ तो 7 गाने गाती है। सोचिए कितने किस्मत वाले हैं सुमित। सुमित से मेरा संबंध है जब ये 3 साल का था। मेरी गोदी में बैठे हुए इसकी तस्वीर है। फिजी में मैं गया था कॉन्सर्ट करने और तब से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। और आज देखिए जो मैं नहीं कर पाया वो इसने कर लिया। शाकिर ने नाम रोशन कर दिया आपका अनूप जी। बहुत मेरा तो नाम रोशन किया। मुझे इसकी बहुत खुशी है। और सच यही है कि जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए ना तो उससे बड़ा दिन गुरु के लिए दूसरा नहीं होता। हमारे बीच सुनील गावस्कर जी हैं, वो भी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं भी हूँ। तो हम लोगों ने साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर न जाने कितनी बार पुट्टपर्ती में जाके गाया है। तो उसका असर हुआ है। आज हम लोग इस जगह पर खड़े हैं। ये एल्बम के जो 2 गाने मैंने सुने, ये लिरिक्स के लिए तो कुछ कहना नहीं, तो उसके लिए जो शब्द चुनने हैं वो मेरे को है ही नहीं। कहाँ से मैं चुनूंगा वर्ड्स। लेकिन सुमित के लिए कहना चाहता हूँ कि सुमित ने जिस कॉन्फिडेंस से इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस को पेश किया है और गुलजार साहब के अल्फाज को, एक एक अल्फाज को इतनी खूबसूरत ढंग से जो शक्ल दी है, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सुमित के लिए बहुत बड़ी तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त तालियां। भवदीप जयपुर वाला जी तो खानदानी कलाकार हैं, बहुत बड़ी फैमिली से हैं। मैं इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, भवदीप जी का भी फैन हूँ। कितनी खुशी आज हो रही होगी सुमित के माता पिता को, जो खास आज के फंक्शन के लिए फिजी आइलैंड से कहा है। लेकिन फिजी से आगे कोई देश नहीं है, वो बिल्कुल आखिरी देश है यूरोप, उसके आगे कोई देश है ही नहीं। तो वहां से आना जाना कोई मजाक है। तो ये वहां के हैं जहां से आगे वो समुद्र है ना, वो वही, उसके आगे कुछ नहीं। तो वहां से ही आते हैं और इतना विशाल हृदय है इस परिवार का कि जैसा कि रक्षंदा जी ने आपको बताया कि जो हॉस्पिटल इन्होंने वहाँ बनाया है उसमें एक दरवाजे से जाइए, सर्जरी करवाइए हार्ट की, और दूसरे दरवाजे से निकल जाइए। कोई बिलिंग सेक्शन है ही नहीं। आपको रुकना नहीं है कि बिल क्या है, वो आप में जाइए आराम से। इतना बड़ा काम तो बिल गेट्स ने भी नहीं किया। बिल गेट्स ने जो हॉस्पिटल बनाया उसको 50% डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ 100% डिस्काउंट है। आइए काम। तो जो मनुष्य इतना बड़ा काम अपने जीवन में करेगा तो इस पर सरस्वती भी तो खुश होंगी, सुर भी तो देंगे इनको। तो आज देख के मुझे गर्व हो रहा है कि सुमित ने इतना बड़ा काम किया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक इसके लिए, और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। सबने बहुत अच्छा किया। थैंक यू अनूप जी। आपने कुछ, ये आपका रिटर्न गिफ्ट है। नमस्कार। अगर ऊंचाई की आदत होती तो मेरी हाइट इतनी नहीं होती, पर मैं सोच रहा था कि क्या मैं हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं।
जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरे पास शायद हिंदी के 2 या 4 ही शब्द हुआ करते थे। शुक्रिया, Really? कृपया। और जब कानपुर की लड़की के साथ शादी की और अगले 23 तारीख को, आज 23 तारीख है, सितंबर के 23 तारीख को हमारे 50 साल होंगे। Congratulations in advance, sir. यहाँ पे भी हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी। तो वहाँ से थोड़ी बहुत हिंदी बोलने की आदत पड़ गई। बट 2 सही शब्द आप जानते थे, शुक्रिया और कृपया। ये 2 शब्द लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया गाएगा, ये कृपया। आपने कृपया बोला ना, उसका शुक्रिया, वो शुक्रिया भी आप ही बोलेंगे। तो उसके बाद में जब गाने सुनता था, हिंदी फिल्मों के गाने तो बहुत सुना करता था, पर उसमें कभी कभी एक ही तकलीफ होती थी कि कुछ ऐसे लफ्ज थे, वो मतलब क्रिकेट में बाउंसर होते हैं ना, सबके ऊपर से निकल जाते थे, समझ में नहीं आता था। तो ये जो सफेद कुर्ते में बैठे इनके लिरिक्स आप कैसे समझते थे? इनके लिरिक्स काफी आसान थे, मतलब सुनने के लिए थोड़े से बहुत मतलब आउटस्विंग और इनस्विंग हुआ करते थे। पर अगर आपकी बैकलिप ज़्यादा ना हो तो फिर उसका भी आप सामना कर सकते थे। और जो बाउंसर होते थे, तो बाउंसर जैसे कि अगर आप वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स के बाउंसर खेलेंगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है। पर इन लफ्ज़ों से, शब्दों से जो बाउंसर थे वो मीठे बाउंसर थे, हल्के से बाउंसर थे, हवा देते थे। आपके चेहरे के नज़दीक से जो गेंद निकल जाती थी 90 माइल्स पर आवर, थोड़ी सी हवा निकल जाती थी। ये इनके अंदर का जो शायर है वो मुझे तो पहली बार दिखाई दिया। उसके बाद में काफ़ी कुछ प्रयास किया हिंदी सीखने का भी, अभी हिंदी में भी कमेंट्री कर रहा हूँ। और ये जो गाने हमने सुने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए कोई भी हो, पर खास करके अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो जब आपके रन बनते हैं ना, तो आपका जो संगीत होता है वो अलग से टेम्पो का संगीत होता है। और जब आप पहली गेंद पर आउट होते हैं तो आपके संगीत का टेम्पो कुछ अलग सा होता है। पर बात सही है कि जो भी हो, आपने सेंचुरी की हो या पहली गेंद पर अगर आप आउट हो गए, संगीत जो दिलासा देता है वो और कुछ नहीं देता। और वो सुनकर जो मज़ा आता है वो एक अलग सा मज़ा है। अभी अनूप जी ने जिक्र किया कि फिजी के आगे कुछ है नहीं, सिर्फ समंदर ही है। और हमने अभी समंदर का गाना भी सुना, समंदर समंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समंदर जितना वास्ट है, उतना ही ये जो एल्बम है उतने ही सारे लोगों तक पहुँचे। और वो सारे सुनकर, सब संगीत वो सुनकर बहुत खुश हैं। उदार जी, हरिप्रसाद जी, भावदीप जी और सुमित जी, जिनके साथ हम सत्य साई बाबा के कार्य में जुड़े हैं। ये ओनली दिल नो बिल। अभी कल खारगर में भी एक प्रोग्राम होना है हमारे हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, बधाई आप सबको, और आप सबको भी कि इतने पेशेंस से, जो मैं पेशेंस दिखा रहा था ग्राउंड पर, क्रीज पर, उतनी पेशेंस से आपने मुझे सुन लिया, उसके लिए शुक्रिया। Thank you so much, Sunil ji. Thank you. ये भी कुछ कहें, मैं चाहता हूँ कि सब लोग कुछ ना कुछ जो 2 गाने आप लोगों ने सुने उसके बारे में अपनी राय प्रकट करें। आप प्लीज मेरे साथ आइए डॉक्टर, प्लीज आप भी आइए। मैं कहता हूँ आप प्लीज आइए, और सुमित आप भी आइए प्लीज सर। देखो सबको कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, सारी सेलिब्रिटीज बोलते हैं, और मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ, आप प्लीज आइए। बहुत आप भी आइए। मैं एक इन सब के बीच गुलजार साहब, मैं आपको यहाँ बुला सकूँ, आपके साथ खड़ा रह सकूँ, उतना सक्षम अपने आप को नहीं मानता हूँ। आपको अब मैं यहीं से कुछ ऐसा कहना चाहूँगा। भौतिक मेरे कॉलेज के मित्र हैं और उनकी कला के बारे में बहुत दिग्गज लोग हैं जो संगीत समझते हैं। मैं तो संगीत सुनता हूँ, ज़्यादा थोड़ा मज़े लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी शक्ति नहीं है किसी संगीत के बारे में बोलने की। सुमित, आपकी आवाज़ बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है, सरल। जितनी तारीफ गुलजार साहब ने आपके शब्दों की करी, आपकी आवाज़ की करी,
मैं बैठा था अनूप जी के बारे में, तो आपकी एक दो झलक देख के ना मुझे आप में अनूप जी दिख रहे थे। मैं आप में से भी अब जब ये वीडियो वापस देखे आप देखेगा आपको यंग अनूप जलोटा जी दिखेंगे। मेरे को लगा मैं बोलूं भी, पर मेरा संगीत के बीच में बोलना योग्य नहीं होता है। कहीं कुछ कला का कुछ थिएटर से हूँ तो हमेशा मुझे लगता है कि नहीं, कभी भी कुछ भी कोई परफॉर्मेंस चलता है तो बातें नहीं करनी चाहिए। अब मैंने सबसे बड़े इनके माँ बाप को यहाँ लाने की ये कोशिश इसलिए की क्योंकि मैंने आके जो थोड़ा लेट आते हैं ना वो गलतियां कर देते, कहीं भी बैठ जाने की कोशिश में कहीं बैठ जाते। तो ये मुझे पता नहीं था कि सुमित के माता जी और पिताजी हैं। तो एक जगह थी, सॉरी वाइफ, आई एम सॉरी, नहीं मुझे अब भी नहीं मालूम है। देखिए मैं इसलिए इनको ले आया, मुझे अब भी नहीं मालूम। तो ये बातें कर रहे थे और मैं ना आके हड़बड़ाहट में इनके बीच में बैठ गया, दोनों के बीच में, इनके रिलेटिव के बीच में। तो इनका एक वार्तालाप जो था वो मैंने बंद कर दिया था और इनकी खुशियों में मैंने एक बाधा डाल दी थी। तो मुझे लगा इनकी स्टेज पर आके माफी मांगी जाए कि इतना ही ये होता है, फैमिली का जब फंक्शन होता है ना तब सबसे ज्यादा आनंद, ये तो सब मित्र है इतने कल, हम तो सब गेस्ट हैं, पर जो परिवार होता है ना उनके चेहरे पे एक जो आनंद होता है ना वो मुझे लगा मैंने उसमें कहीं विक्षेप डाल दिया, तो मैं सॉरी बोलना चाहता था। एंड गुलजार साहब, आपका सिर्फ मैं नहीं, जितने बैठे सबके सब आपके इतने बड़े फैंस हैं। मैं आपको एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ यहाँ से कि सोशल मीडिया पे कुछ 5, 7, 8 लोग आपके नाम से अकाउंट चला रहे हैं। गुलजार जी के नाम से कुछ भी लिख दो, आपकी तस्वीर लिखे, किसी के भी शब्द, आपके शब्दों में इतनी शक्ति है। कोई अपने शब्द भी आपके नाम से लिख देता है तो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो आप आज भी सोशल मीडिया पे, आज भी हम, मैं तो अपने आप को यंग नहीं कह सकता, पर जो भी है इस दुनिया में जितने जिस शब्द को अगर कोई शक्ति देनी है, कोई पावर देना हो तो उसके साथ गुलजार साहब लिख दीजिए, शब्दों को अपने आप शक्ति मिल जाती है। माई बेस्ट विशेष सुमित, माई बेस्ट विशेष भवदीप, और सर बेस्ट विशेष टू यू। ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त एल्बम है। थैंक यू। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे अरुण गोविल जी को। प्लीज़ आप यहाँ तशरीफ लाएं और जो आपने 2 गाने सुने उनके बारे में कुछ शब्द कहें और आशीर्वाद दें हमें। जय श्री राम। मैं जब पहली बार सुमित से मिला था तो जय श्री राम बोलकर ही मिला था, क्योंकि हम दोनों ये मुझे फीजी ले जा रहे थे रामायण के बारे में कुछ बातें करने के लिए। तब मैं पहली बार इनसे मिला था, हमने कुछ शोज वहाँ किए थे जिसमें मैं रामायण को अपने हिसाब से मैंने क्या समझा है रामायण को, उसको एक ड्रामेटिक अंदाज में मैं नरेट करता था और उस बीच में सुमित रामायण के श्री राम जी के भजन गाते थे। वो प्रोग्राम हमने किया था, उस तरह से हम साथ साथ जुड़े। उसके बाद बहुत बार मिलते रहे और आज यहाँ दिल परेशान करता है, वो दिल ही क्या जो परेशान ना करे। दिमाग होता है, सोच सकते हैं हम ठीक ठाक बातें, सही रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन दिल ना, कभी सीधा नहीं सोच पाता। तो टाइटल जो है वो अपने आप में सार्थक है और ये टाइटल सुमित किसने दिया है इस एल्बम को, और कोई दे भी नहीं सकता था। गुलजार साहब के बारे में कुछ कहना कितना भी कहा जा सकता है और शब्द शायद खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में जो कहना है वो खत्म नहीं हो पाता। अभी जब वो यहाँ बैठे थे, जब मैम ने उनसे पूछा था कि आप बताएं इस एल्बम के बारे में, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मेरे जब ये लोग आए दोनों तो म्यूज़िक की बातें हुई, ये हुआ, मैंने कुछ लिखा, मेरे शब्दों को पनाह मिल गई। ये जो तीर है ना जो यहाँ लगते हैं, जिनसे परेशान होता है, ये सिर्फ ये शख्सियत कर सकती है। जब इनका लिखा हुआ
हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमेशा यही लगता है कि अरे हाँ ये तो सही बात है, ये अब तक समझ में क्यों नहीं आई थी, आज क्यों समझ में आई है। तो कितनी ही बातें गुलजार साहब यूं ही समझा देते हैं अपनी शायरी के जरिए। उन्होंने लिखा हो, सुमित ने गाया हो, भावदीप जी का संगीत हो, तो अपने आप में वो सब कुछ पूरा हो जाता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो अनूप जी ने मुझे मिलाया था इनसे, और मैं आपको तो बधाई देना चाहूँगा ही, आपको भी बधाई दूंगा, साथ ही साथ अनूप जी को भी बधाई दूंगा कि उनका शिष्य आज यहाँ पहुँच गया है। और उसके साथ ये शख्स सर, मैं आपको बधाई देने की गलती नहीं करूँगा ना, वो बहुत ही गलत सी बात होगी कि मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन इस एल्बम के लिए भी मैं वहाँ आकर आपके पाँव ज़रूर छूना चाहूँगा। मुझे इतनी इजाज़त आप दे दें बस, मैं भी वहाँ आता हूँ और आपके पाँव छूँगा। और ऑल द बेस्ट आपको और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जय श्री राम। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई नितिन मुकेश जी भी पधार चुके हैं, मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा। माफ़ कीजिए अगर ज़बान लड़खड़ाए। जिनको मैं आज सुमित से तो मिलने आया ही हूँ, भावदीप जी को बधाई देने तो आया ही हूँ, मगर जिनको मैं 50 years now, I'm not good at mathematics, maybe more than 50. I met him in 1970. मेरे लिए तो भगवान की तरह हैं, मेरे गुरु भाई हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ मैं उनका सबसे जूनियर असिस्टेंट था। मैंने आनंद फिल्म में ज्वाइन किया। उस वक्त से ही अगर प्रेरणा एक अच्छे इंसान की, कवि तो ये महान है ही, लिरिक्स तो, but as a human being I tell you, I think in this room I must be one of the few blessed people who know him for over 4 decades. पापा के लिए, पापा ने भी उनके साथ गाने गाए, मगर मैंने उनके साथ उनके अंडर में काम किया है, उनका स्नेह पाया है, और एक अच्छा कलाकार, अच्छा इंसान बनना कैसे वो उनसे सीखा है। गुलजार भाई, आपको प्रणाम फिर से करता हूँ। भगवान आपको, देखिए मैं तो अब खड़ा रहने भी लायक नहीं रहा थोड़ा पहले से ही वज़न था, मगर आज आपको देखने आया हूँ। आई थिंक एक ऊर्जा, नई ऊर्जा मिलेगी आपसे। दूसरी बात ये है कि ये खुशकिस्मती देखिए कि जिन्हें आँखों से देखना मुद्दत हो जाती है, हफ्ते में 2 बार हरि जी के चरण स्पर्श कर सका। परसों इस्कॉन में आपके पाँव छूने का वो मौका मिला, और आज
जिन्हें 40-50 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं, गुलजार भाई के दर्शन आज हुए। एंड सबसे पहले he called me by, I thought I will call him by that name, but he called me by that beautiful name that he used to call me when I was a young 18-year-old assistant. He called me MD, my dear, my dear. तो बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि मैं MD हूँ तो गुलजार साहब का सबसे प्रिय होऊंगा। फिर मेरे अपने बनने लगी तो एक दिन विनोद खन्ना जी से मुलाकात की तो मैंने बोला गुलजार भाई कितने अच्छे हैं, मुझे MD बुलाते हैं, तुम्हें भी बुलाते हैं MD? मैंने बोला अच्छा ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रही विनोद, हम दोनों ही एक दिल के दो अरमान हैं इन गुलजार साहब के। वी लव यू गुलजार भाई। 3 ये जिक्र शुरू हुआ था वो मुझसे के यहाँ से, और हम लोग आपस में MD सुनो बात सुनो, MD में खड़े होकर बता रहा हूँ कि MD कह के बुलाया करते थे हम जैसे को, और किसी को कोई बात नहीं करेगी ये MD क्यों बुलाते हैं, कुछ नहीं है ऐसी। MD इसका नाम होगा तो वो कोई मेडिकल होगा, कुछ फलाना होगा, और ये सिर्फ रोनू सिप्पी थे और नितिन थे और विनोद थे। एक शख्स और था उसमें मेरे अपने गिरफ्त में जो सुन के हमको MD कहने लग गया, लेकिन उन्होंने कभी समझा नहीं कि ये किसके लिए वो शत्रुघ्न थे, तो MD बुलाते रहे। इसका और कोई उसकी वजह नहीं है, ये सीक्रेट मेरा ख्याल है आज भी रहे तो अच्छा ही है बता दो। तो लेकिन ये मेरे MD हैं। उनको देखते ही इसलिए मैंने आवाज दी, मैं कहा MD बुला लिया। बोलने का मौका मिला है, माइक मेरे हाथ में है, तो मैं एक और बहुत खूबसूरत महेंद्र भाई ओळखो छो मैंने अनूप ने जैसे बताया कि इसको गोद में खिलाया, वो यू बॉर्न व्हेन आई वेंट इन 84? नहीं, ही सेइंग कि आई आल्सो सैट ऑन योर लैप, सो दैट मस्ट बी सम लैप। मगर हाँ, मुझे जब इसने अनूप के घर पे बहुत बरसों बाद परिचय हुआ मेरा, ये बच्चे मेरे लिए तो बेटा ही है, तो इसने बताया कि नितिन अंकल आई एम सुमित टप्पू। आई सेड वेट अ मिनट, दिस सरनेम, आर यू महेंद्र भाई's son? And he said, I am Mahendra ji's son. I said, I remember him from 1984 when I went to Fiji with Lata Didi. And he was one of the, Anup ने तो और उनके गुण बताए, मगर what a fine host, fine gentleman. आपके दिए संस्कार आपके बेटे में हैं महेंद्र भाई, और फिर अनूप के चरणों में मैं कहूँगा, अनूप के दिल में उसी जगह मिली है और ट्रेनिंग मिली है सही जगह, एकदम सही जगह, इसलिए आज ये मुमकिन है। दिल परेशान तो करता ही है, मगर यूं ही दिल परेशान करता रहे, क्योंकि संगीत चीज़ ही ऐसी है कि जब तक दिल को झंझोड़ नहीं देती तब तक उसकी समझ आती ही नहीं। सुमित को बहुत प्यार और आशीर्वाद। महेंद्र भाई आपको बहुत बहुत बधाई कि ये खुशी का दिन आप देख सके। थैंक यू सो मच। अनूप आपको हरि जी प्रणाम फिर से करता हूँ। अरुण जी नमस्कार नमस्कार। सुनील आई सौ सुनील हैं कि निकल गए? सुनील हाय बेटा। नारायण जी नमस्कार। I'm fumbling because I am too happy for this beautiful occasion beta. God bless you. खूब फतेह करो। God bless you. और अब
जाने से पहले एक ख़ास काम। आज हम मिले एक ऐसे इंसान से जो अब तक बालिग नहीं हुए हैं। उनकी सालगिरह हाल ही में मनाई गई थी, लेकिन केक खाने का मौका हमें नहीं मिला था। तो इससे पहले कि वो बालिग हो जाए और हमें केक ना खिलाएं, हम गुलजार जी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टेज पर आए और एक ख़ास केक का इंतज़ाम हमने किया। चाय तो हम भी पिएंगे। May we have the birthday boy on stage and also the birthday cake. Ji, I can someone भाई हिलो मत। हाँ आ गया। तो आप बैठ जाओ प्लीज। लड़के का नहीं आ रहा। बैठ जाओ भाई पीला। May I request Sunil ji also to please come on stage? क्या बात जी बहुत 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 शुक्रिया जी, मेरे लिए बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। और मैं समझ रहा था कि हाँ लोगों को पता है या नहीं कि मैं 19 वर्ष का हो गया हूँ। मैं इनका बहुत बड़ा मुद्दा हूँ, बहुत बड़ा एडमायर हूँ और ये जानते हैं। मैंने एक बार इनसे जिस वक्त लेखन की मुहूर्त थी, लता जी की पिक्चर थी, तो मैं इनसे कहा आपके साथ फोटो खिंचानी और मेरे साथ में फोटो खिंचाई थी। उस वक्त इन्होंने ये डॉक्यूमेंट में। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि माई ग्रैंडसन इज स्टडिंग विद हिज ग्रैंडसन इन Thiru High School में। So I want you to be, I just want to feel the same and want to feel young. So मैं उस ज़माने के लिए आपका हाथ पकड़ के ये चिप क्यों काटना चाहता हूँ ताकि ये प्लीज। हाथ तो गुलजार साहब सुमित का भी पकड़ना पड़ेगा, उनका बर्थडे भी है 31 को। क्रिकेट हैज़ बीन माय फेवरेट गेम। मैं चाहता था कि मेरे साथ थे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर डूइंग दिस। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत सारे खूबसूरत जन्मदिन आप और मनाएं और जन्मदिन की मिठास ऐसे ही हमारे साथ शेयर होती रहे। थैंक यू, इट इज़ एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gulzar Saab. Happy birthday to you. गुलजार साहब, I only believe in centuries. आप तो 90 हो गए, another 10 years. अब सिर्फ एक ही बात है कि जब when you get to the 90s, you have to play with a straight bat. मैं जानता हूँ कि you have always won the most difficult matches and most difficult innings. अब मैं आपकी तरह का बैट्समैन होता तो वादा भी कर देता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा कि आपके कहने की वजह से कोई बाउंड्री लग जाए। Thank you, God bless. सर हम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं तो होगा, कोशिश पूरी हो जाएगी। Thank you so much. जी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you to all our esteemed guests who have come here this evening, who took out time to shower blessings on Sumit. I'm told that even my friend Kunal Ganjawala is here. Welcome Kunal.
You missed seeing the two beautiful videos, but we'll make sure we play them again for you. जितने लोग यहाँ आए उनका तहे दिल से शुक्रिया और we request all of you to stay back and enjoy some tea, coffee and snacks and thank you for being here with us. Thank you. Good evening.